Hi, welcome to DSA episode 2. My name is Harinder Pal. This is the second video in the DSA primer series. Quick revision. In episode 1, we studied why DSA and what is DSA, and apart from that, we spent time on understanding what is time complexity. Okay? हम दो एग्जाम्पल लिए थे उसके अंदर, वन इज फिबोनाची एंड वन इज फैक्टोरियल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड वी रोट टू वेरिएशंस ऑफ द कोड, iterative version and the recursive version. Okay? हमने उन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी टू अंडरस्टैंड विच इज़ बेटर. If you remember, the time complexity of Fibonacci iterative came out to be order of n. The time complexity of Fibonacci recursive came out to be order of 2 की power n. Okay? हमने एग्जाम्पल भी लिए थे जिससे we could understand that order of 2 की power n is really bad than order of n, and hence Fibonacci iterative is better than Fibonacci recursive. Okay? सिमिलरली हमने फैक्टोरियल भी डिस्कस किया. फैक्टोरियल आइटरेटिव की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी केम आउट टू बी ऑर्डर ऑफ n, एंड फैक्टोरियल रिकर्सिव की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी केम आउट टू बी ऑर्डर ऑफ n. द प्रॉब्लम इज अभी वी डोंट नो विच इज बेटर. ओके, सो लुकिंग एट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आइटरेटिव एंड रिकर्सिव फिबोनाची के अंदर वी कैन अंडरस्टैंड आइटरेटिव इज बेटर, बट वी कैन नॉट से दैट फॉर फैक्टोरियल. दिस इज पार्ट ऑफ द क्विक रिवीजन. मैंने एक बार दोबारा से कोड लिख दिया है सो दैट यू रिमेंबर इफ यू हैव नॉट रिवाइज्ड द प्रीवियस सेशन. ओके, फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी केम आउट टू बी ऑर्डर ऑफ n, which was really easy. You can check the last video. Factorial recursive time complexity came out to be order of n. Part of the refresher, time complexity of a recursive function is equal to time complexity ignoring the function recursive calls, basically the sub calls. You multiply that by number of function calls. ये function हमने एक लिखा था लास्ट टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ रिकर्सिव फंक्शन. ओके, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम है, सो वी डोंट नो विच इज बेटर. ओके, नाउ हाउ डू यू नो विच इज बेटर? The another concept is called as space complexity. So just like time complexity, we can calculate space complexity. Okay, which will be pretty much our today's agenda. Okay, space complexity. I was thinking we will spend some time on practicing more on time complexity, but while making this content, I realized that वो तो नहीं हो पाएगा आज. Okay, it's too much of content to be discussed in one session. So we'll discuss that in the next session. Okay. Okay. Moving forward. Okay. Time complexity. So just like we studied time complexity last time, okay, just like time complexity gives you the time taken by a program, space complexity gives you the space required by a program. Okay? ये लाइन बिल्कुल गलत है. लास्ट टाइम आई एक्सप्लेन यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डज नॉट टेल यू कि टाइम कितना ले रहा है प्रोग्राम. ओके, इट डज नॉट टेल यू 4 मिली सेकेंड लग रहे हैं या 4 सेकेंड लग रहे हैं. ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी in some sense gives you the amount of time steps your program would take with respect to the input. Okay, just like that, space complexity tells you the amount of space required by a program with respect to the input. Okay, so the input part is really important. Okay? As the input grows, your time complexity and your space complexity will grow, right? And this is what we want to find out. तो यहाँ पे 3 फंक्शन है जिनको हमने नामकरण किया है F1, F2, F3. Okay? मैंने फंक्शन का नाम लिखा है, मैं कुछ भी नामकरण कर सकता हूँ. Okay? तो F1 इज डूइंग समथिंग. जो भी कर रहा है बिल्कुल बकवास है, सो डोंट वरी अबाउट व्हाट दिस फंक्शन इज डूइंग. ओके, बट इट्स डूइंग समथिंग. ओके, सिमिलरली F2 is doing something and F3 is doing something. Okay, let us calculate time complexity of these functions. Okay, if you remember, time complexity is number of steps. So this is one step, this is one step, but it's running for almost n number of times. Plus minus 1 से फर्क नहीं पड़ता. तो time complexity of F1 comes out to be order of n. Similarly, time complexity of F2 is order of n, and similarly time complexity of F3 is order of n. Okay, here n is equal to length of the array. Okay, क्योंकि यहाँ पे n कुछ है नहीं, I'm defining what is n. n is length of the array. ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं. तो F1 के केस के अंदर I told you space complexity is the space required by your program in terms of the input with respect to input. Okay, तो उसके लिए the first thing we need to understand is कि हमारा प्रोग्राम स्पेस कहाँ क्रिएट कर रहा है. ओके, तो यू सी देयर इज अ न्यू कीवर्ड ओवर हियर. यू आर बेसिकली क्रिएटिंग अ न्यू एरे. ठीक है, उस एरे का साइज कितना है? n. ओके, एक इंटीजर मान लीजिए 4 बाइट लेता है. ओके, सो यू आर क्रिएटिंग n इंटीजर्स ओवर हियर, सो दैट बेसिकली इक्वल टू 4n bytes. Okay, you are creating an
इंटीजर आई ओवर हेयर, ठीक है, अगेन इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो इसको हम मान लेते हैं दिस इज अगेन 4 बाइट्स. Okay, we have not created any other variable, so the space required by your program is 4n plus 4. Okay, bytes, it's bytes, you can ignore that. Okay, so 4n plus 4 is equal to 4 into n plus 1, which is equal to order of n. Okay, again like we discussed last time, okay, you can ignore the constants. So the formula मैंने लास्ट टाइम बताए थे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के, all of those apply for space complexity as well, because those formulae were for big of O, big O, right? They were not for time complexity, they were for big O. ठीक है, तो यहाँ पे big O आ रहा है, so the same formula applies over here as well. The space complexity of f1 is equal to order of n. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n है. ओके, इस केस में दोनों स्पेस और टाइम ऑर्डर ऑफ n है, दैट डज नॉट मीन कि हमेशा सेम होते हैं वो. ओके, फंक्शन 2 की बात करते हैं, तो फंक्शन 2 के अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं. यहाँ पे एक एरे है जो कि 4 बाइट का है, कांस्टेंट है. यहाँ पे एक आई है जो कि 4 बाइट का है. अगर इट डिपेंड्स ऑन योर लैंग्वेज, आई डोंट वरी, 4 बाइट का है 2 बाइट का, हार्डली मैटर्स. ठीक है, इट इज़ कांस्टेंट बेसिकली. अगेन वी विल बी इग्नोरिंग कांस्टेंट, सो हार्डली मैटर्स. ओके, वी आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग एल्स ओवर हियर, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम्स आउट टू बी ऑर्डर ऑफ 1. right? Order of 8 bytes is equal to order of 1. We don't worry about constants. तो दिस इज एन एग्जाम्पल जिसके अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग है. ठीक है, यहाँ बात करते हैं इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड बिकॉज ऑफ दिस फॉर लूप. ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम इज यहाँ पे एक इंटीजर है विच इज़ 4 बाइट्स. ओके, बेसिकली कॉन्स्टेंट. यहाँ पे कुछ और नहीं है, यहाँ पे एक एरे भी है. ठीक है, विच यू कैन से इज ऑर्डर ऑफ n if n is the length of the array. But now this is important, ध्यान दीजिएगा. okay, int of array, this array is the input in the function, right? ये array हमने create नहीं किया है खुद से अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए. तो अगर मैं ये वाला लॉजिक नहीं लिखता हूँ, मैं कुछ और लॉजिक लिखता हूँ, इवन देन दिस इंट ऑफ एरे विल स्टिल बी देयर. ओके, आप कोई भी कोड लिखिए, अगर आप इस फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, प्रोवाइडेड इनपुट्स और आउटपुट सेम है, तो इंट ऑफ एरे की जरूरत पड़ेगी आपको. एंड इसलिए वी डोंट वरी अबाउट space required by the inputs when you are calculating the space complexity. Okay, so ignoring this int of array, the space required is constant. So time complexity is order of n, but space complexity is order of 1. Okay, तो यहाँ भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है. ठीक है, अगेन ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम ही होती है हमेशा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से उल्टा भी हो सकता है. आई कैन एक्चुअली राइट अ फंक्शन 4 जिसके अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी. ठीक है, आई हैव नॉट रिटन दैट, यू कैन ट्राई राइटिंग दैट एज एन होमवर्क. तो आई बिलीव नाउ यू अंडरस्टैंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं. ओके, तो लेट अस ट्राई कैलकुलेटिंग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर फैक्टोरियल. ठीक है, तो फैक्टोरियल का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं यहाँ पे. तो इफ यू सी देयर इज ओनली वन वेरिएबल, वन मोर वेरिएबल, नथिंग एल्स. अगेन दे आर कॉन्स्टेंट. ठीक है, ये लूप n बारी चल रहा है, लेकिन i एक ही बारी बनेगा, राइट? सो सेम वेरिएबल विल बी ओवर रिटन एवरी टाइम. पहले i2 होगा, फिर i3 होगा, फिर i4 होगा. आप नया वेरिएबल क्रिएट नहीं कर रहे हैं हर बारी. ओके, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम इज ऑर्डर ऑफ 1. ओके, what about space complexity of the recursive function? Okay, so over here there is nothing created. ठीक है, there may be some temporary variables, intermediate variables created, but again वो सारे constant होंगे, that does not depend on the input. Okay, the problem is यहाँ पे fact of n minus 1, you don't know space complexity of this part. Okay, if you remember last episode, last session, last video, वहाँ पे भी we had the same problem जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश कर रहे थे फॉर रिकर्सिव फंक्शन, कि हमें अंदर वाले रिकर्सिव कॉल की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता है. सो हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? उसके लिए भी डिस्कस दिस फंक्शन कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव फंक्शन इज इक्वल टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फंक्शन वेयर यू इग्नोर द रिकर्सिव कॉल्स, यू मल्टीप्लाई दैट बाय नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स. आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, दिस इज इंपॉर्टेंट. सो सिमिलरली we calculate space complexity of a recursive function, which is equal to space complexity of the function wherein you ignore the sub calls, the recursive calls, you multiply that by number of function calls, जो कि बिल्कुल गलत है, जैसे कि मैंने काट भी रखा है यहाँ पे. okay, in case of space complexity you do not calculate number of function calls, okay, because टाइम की बात नहीं हो रही है. number of function call something to do with time, कितनी बारी फंक्शन कॉल हो रहा है, एक बारी में कितना टाइम ले रहा है. okay, that is a time complexity. space complexity is कितनी बारी फंक्शन कॉल हो रहा है, नहीं. okay, it is the maximum space required by your function calls into space complexity of one recursive call. Okay, or maximum space required by your function calls you can calculate by something called as calculating the maximum stack space required. अब ये क्या बोला है? ठीक है, so we have not discussed about stack space in the past. ठीक है, तो
to explain you this better, let me take a pause and go to something different. Okay? We'll come back to space complexity of a recursive function later. Abhi, we will take couple of minutes break from the original topic and we'll discuss something again computer science only. ठीक है, मैं physics नहीं पढ़ाने वाला हूँ. Okay? We will discuss internals of memory. ठीक है, I will not go into too many details of the memory and related topics because I'm not teaching that in this session. Okay? We are studying data structures, time complexity, space complexity, but there are some concepts which are needed for me to better explain space complexity. तो इसके लिए we will take 5 minutes on a different topic. तो आपकी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जिसको रैम बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं, ठीक है, मोटा मोटा यू कैन डिवाइड दैट इनटू 3 पार्ट्स. एक को हम कोड एरिया या टेक्स्ट बोल सकते हैं, दूसरे को हम स्टैक बोलते हैं, तीसरे को हम हीप बोलते हैं. ठीक है, तो योर प्रोग्राम टू रन टेक सम मेमोरी, वो मेमोरी के ये 3 पार्ट हैं. इन योर कोड वेन एवर यू राइट इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट, बेसिकली एक न्यू कीवर्ड, या अगर आप C++ की बात करते हैं तो मेलोक कीवर्ड जब यूज़ करते हैं, ओके, दैट क्रिएट्स सम न्यू मेमोरी. ओके, तो वो मेमोरी कहाँ से आती है? वो मेमोरी हीप से आती है. ओके, तो डायनामिकली जब भी आप रन टाइम पे कुछ नया मेमोरी इनिशियलाइज कर रहे हैं, वो मेमोरी कम्स फ्रॉम द हीप. बट जो काम कंपाइल टाइम पे होता है, स्टैटिक टाइम पे होता है, ठीक है, वो सारा कम्स फ्रॉम द स्टैक. ओके, वेन एवर यू क्रिएट अ न्यू फंक्शन, ओके, दैट फंक्शन गेट्स स्टोर्ड इन द स्टैक. ये लाइन गलत है. Whenever you call a function, that function gets stored in the stack. Okay, I'm repeating. Whenever you call a function, that function gets stored in the stack in a structure which is called as activation record. Okay, in other words, जब भी कोई एक फंक्शन कॉल होता है, एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड उस फंक्शन का जाके स्टैक में स्टोर हो जाता है. ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे स्टोर होता है, डिटेल में बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है फॉर दिस सेशन. ओके, फॉर दिस सब्जेक्ट इनफैक्ट. ओके, ये मान लो कि उस फंक्शन के अंदर जो भी लोकल वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पे इंट ए है, यहाँ पे हम इंट बी सी जो भी बनाएंगे, जो कि लोकल वेरिएबल्स हैं स्टैटिक टाइम पे, जिनकी फिक्स्ड मेमोरी है. ओके, वो सारी फिक्स्ड मेमोरी जो है वो स्टैक से आ रही है और वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाती है. ओके, लेकिन स्टोर रन टाइम के ऊपर हो रहा है, स्टैक के अंदर जाके. ठीक है, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. ठीक है, तो अब हम फैक्टोरियल रिकर्सिव का ये एग्जांपल लेके लेट अस कैलकुलेट दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, सो आई एम मेंशनिंग अगेन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ रिकर्सिव फंक्शन इज इक्वल टू स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फंक्शन, जहाँ पे यू इग्नोर, हाँ इग्नोरिंग ही लिखा है, राइटिंग काफ़ी बुरी है, इग्नोरिंग द रिकर्सिव कॉल मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम स्टैक स्पेस रिक्वायर्ड. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज इजी. इफ यू इग्नोर दिस देन देर इज नथिंग यू आर क्रिएटिंग ओवर हेयर. कुछ इंटरमीडिएट क्रिएट भी हो रहा होगा. दिस विल बी कॉन्स्टेंट साइज, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द इनपुट. तो इसको हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1. इसकी बात करते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस, मैंने क्या बोला लास्ट पेज के ऊपर कि वेन एवर अ फंक्शन इज कॉल्ड देयर विल बी अ एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएटेड इन द स्टैक. ओके, समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं. वेन एवर यू आर कन्फ्यूज यू टेक एग्जाम्पल. ओके, तो आई हैव अ स्टैक, यू कैन अज्यूम दिस इज द स्टैक पार्ट ऑफ योर मेमोरी. ओके, सपोज n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 3. व्हेन n इक्वल टू 3, तो देयर विल बी एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएटेड एंड स्टोर्ड इन द स्टैक विद f of 3. नाउ f of 3 विल कॉल n into f of 2. तो बेसिकली f of 3 विल कॉल f of 2. f of 2 विल कॉल f of 1. दैट्स इट, राइट. तो 3 maximum stack space required, or maximum, some people call it maximum stack height, okay, which is 3. okay, अगर n 4 होता तो it will be f of 4, f of 3, f of 2 and f of 1. okay, तो यहाँ पे 4 हो गया. okay? अगर n है तो it will be n height required. okay, so this is n, hence space complexity comes out to be order of n. Okay. So space complexity of this function, which is factorial recursive, is equal to big O of n, order of n. Okay. Summarizing, factorial, iterative, factorial, recursive. Time complexity was order of n, space complexity order of 1, order of n. Okay. Now इसके अंदर who one? Iterative. Okay. If you remember, फिबोनाची के केस के अंदर भी we discussed that फिबोनाची iterative is better. Okay. फैक्टोरियल के अंदर भी फैक्टोरियल iterative is better.
दैट डज नॉट मीन रिकर्सिव फंक्शंस आर बैड, ठीक है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आई मेंशन दैट इन द लास्ट सेशन एज वेल। इसका मतलब ये नहीं है कि रिकर्सिव फंक्शन बुरे होते हैं, इट इज़ जस्ट दैट जो दो फंक्शंस को हम कंपेयर कर रहे हैं, एक आइटरेटिव वर्जन और रिकर्सिव वर्जन, उसके अंदर आइटरेटिव वर्जन इज कमिंग आउट टू बी बेटर, ओके। सो वेन एवर यू हैव टू डिफरेंट फंक्शंस जो सेम काम कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू कंपेयर, यू कंपेयर टाइम कम्प्लेक्सिटी, यू कंपेयर स्पेस कम्प्लेक्सिटी, एंड देन डिसाइड योरसेल्फ कौन सा बेटर है, ओके। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ रिकर्सिव फंक्शन। फैक्टोरियल के केस के अंदर तो वी हैव कैलकुलेटेड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन फिबोनाची की रह गई है, तो वो निकाल लेते हैं एक बारी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाज ऑर्डर ऑफ n, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाज ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n, ओके। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेट अस कैलकुलेट, ओके। चलो आई नो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख के ही लग रहा है कि दिस इज बेटर, ये निकालने की जरूरत नहीं है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, बट सीख रहे हैं तो सीख लेते हैं अच्छे से। लेट अस कैलकुलेट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बोथ ऑफ दिस फंक्शंस, ओके। इसकी निकालते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कितने वेरिएबल क्रिएट हो रहे हैं? 3 वेरिएबल क्रिएट हो रहे हैं। अगर 8 बाइट 4 बाइट ले रहे हैं, 4 × 3 12 बाइट ले लेगा, सम कॉन्स्टेंट बेसिकली, प्लस आई विल टेक सम बाइट, मे बी दिस इज टेकिंग 12 बाइट्स, दिस इज टेकिंग मे बी 4 बाइट्स। आई अगेन फंक्शन लूप बार बार चल रहा है, लेकिन आई एक बारी क्रिएट होगा, ओके। सी ए और बी पहले क्रिएट हो रखे हैं, ओवरराइट होंगे हर बारी, ठीक है। तो इट इज अगेन कांस्टेंट, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट, इवन दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1 विच इज कांस्टेंट। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, अगेन वी हैव द सेम प्रॉब्लम, रिकर्सिव फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फंक्शन इग्नोरिंग द फंक्शन कॉल्स, विच कम्स आउट टू बी ऑर्डर ऑफ 1, बिकॉज यहाँ पे कोई ज़्यादा कुछ क्रिएट हो नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम स्टैक साइज रिक्वायर्ड और मैक्सिमम स्टैक हाइट रिक्वायर्ड, ओके। उसकी बात करते हैं अगेन, जस्ट लाइक अ 4-year-old किड, टेक एग्जाम्पल्स। तो फिब ऑफ 4 की बात करते हैं। तो फिब ऑफ 4 इस केस के अंदर विल कॉल फिब ऑफ 3 एंड फिब ऑफ 2। आई नो ये स्टैक नहीं है, आई एम जस्ट राइटिंग द फंक्शन कॉल्स, देन एक बार स्टैक में भी देखते हैं इसको, ओके। इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास के अंदर दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग दैट अगेन, दैट विल हेल्प मी टू क्रिएट द स्टैक, ठीक है। फैक्टोरियल थोड़ा इजी था, मैंने बनाया नहीं है, बट एज अ गुड प्रैक्टिस यू कैन फर्स्ट चेक नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स रिक्वायर्ड एंड देन यू कैन चेक कि कितने स्टैक की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो फिब ऑफ 3 विल कॉल फिब ऑफ 2 एंड फिब ऑफ 1, फिब ऑफ 2 विल कॉल फिब ऑफ 1 एंड फिब ऑफ 0, फिब ऑफ 2 विल कॉल फिब ऑफ 1 एंड फिब ऑफ 0, ओके। एंड हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि द नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स इन दिस केस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स इज ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n, इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम स्टैक साइज भी 2 की पावर n ही चाहिए। येस, इन केस ऑफ फैक्टोरियल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स ऑर्डर ऑफ n थी और मैक्सिमम स्टैक साइज ऑर्डर ऑफ n की जरूरत थी, यहाँ पे इट मे नॉट बी ट्रू। एक बार देखते हैं, ओके। अगेन सेम एग्जांपल को लेते हैं। तो जब f ऑफ 4 कॉल होगा तो हमारे स्टैक भाई सब के अंदर तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाएगा जो सेव हो जाएगा यहाँ पे जाके, ओके। अब फिब ऑफ 4 विल कॉल फिब ऑफ 3, मल्टी थ्रेडिंग की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक एक करके फंक्शन कॉल हो रही है, ठीक है। तो दिस फंक्शन विल फर्स्ट कॉल दिस फंक्शन, ठीक है। जब ये खत्म हो जाएगा बाद में यहाँ पे आएगा ना, पहले तो ये फंक्शन कॉल होगा, मानते हैं मानते, ठीक है। तो फिब ऑफ 4 विल कॉल फिब ऑफ 3, तो ये कॉल हो गया, ये कॉल हो गया। अब फिब ऑफ 3 विल कॉल फिब ऑफ 2, मानते हैं नहीं मानते? तो यहाँ पे फिब ऑफ 2 भी आ जाएगा। अब फिब ऑफ 2 विल कॉल फिब ऑफ 1, मानते हैं नहीं मानते? मानते हैं, चलो गुड। तो फिब ऑफ 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब फिब ऑफ 1 विल कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, ये खत्म हो गया, तो कंट्रोल विल गो बैक टू फिब ऑफ 2, ओके। अब फिब ऑफ 2 सॉरी फिब ऑफ 1 खत्म हो गया, तो फिब ऑफ 2 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टैक में निकालो बाहर। अब फिब ऑफ 2 विल कॉल फिब ऑफ 0, फिब ऑफ 0 कहाँ पे आएगा, ये जगह खाली है, तो फिब ऑफ 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये फंक्शन कॉल हो गया जी। नाउ दिस फंक्शन कंप्लीट्स द एग्जीक्यूशन, ओके। बाहर निकालो इसको, कंट्रोल का गोज बैक टू फिब ऑफ 2। नाउ फिब ऑफ 2 कंप्लीट्स एग्जीक्यूशन, बाहर निकालो इसको, कंट्रोल गोज बैक टू फिब ऑफ 3 विच विल नाउ कॉल फिब ऑफ 1। फिब ऑफ 1 कहाँ पे स्टोर होएगा, यहाँ जगह खाली है,
नाउ fib of 1 completes execution, बाहर निकालो इसको, कंट्रोल गोज बैक टू fib of 3, fib of 3 का काम खत्म हो गया, इसको बाहर निकालो, कंट्रोल गोज बैक टू fib of 4, fib of 4 विल नाउ कॉल fib of 2, कहाँ पे आएगा, यहाँ जगह खाली है, नाउ fib of 2 विल कॉल fib of 1, कहाँ आएगा, यहाँ जगह खाली है, ये खत्म हुआ, इसको बाहर निकालो, कंट्रोल वापस गया यहाँ पे, इसमें fib of 0 को कॉल किया, fib of 0 यहाँ पे आएगा, जगह खाली है, fib of 0 खत्म हुआ, इसको बाहर निकालो, कंट्रोल वापस यहाँ पे आ गया fib of 2 पे, इसको बाहर निकालो, कंट्रोल यहाँ पे आ गया वापस fib of 4 पे, इसको बाहर निकालो. Even though there was order of 2 की power n number of function calls, the maximum stack size required, the maximum stack height is just 4. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर आप fib of 3 लेंगे, एग्जाम्पल लेके देखिए, ठीक है, यू विल सी द मैक्सिमम स्टैक साइज रिक्वायर्ड विल बी 3. ठीक है, सिमिलरली अगर आप 5 लेंगे तो मैक्सिमम स्टैक साइज रिक्वायर्ड विल बी 5. n के लिए मैक्सिमम स्टैक साइज रिक्वायर्ड विल बी n. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम्स आउट टू बी ऑर्डर ऑफ n. Okay. Okay. So if you fill this, time complexity of iterative factorial is order of n, this is order of n, this is order of 1, this is order of n, this is order of n, this is order of 2 की power n, this is order of n1, this is order of n. Okay. So this is the summary of whatever we have discussed. There is just one thing I'll tell you before closing this video. Okay. नहीं बताऊंगा, छोड़ो, लास्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम करेंगे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड, दिस इज द समरी ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. यहाँ मैं कुछ नया पढ़ाने वाला था, ये मैंने काट दिया है क्योंकि बहुत हो गया आज के लिए, नेक्स्ट टाइम करेंगे. ओके. और मैं बंद करने वाला था इसको, फ्रेंड ऑफ माइंड टोल्ड की जोक तो बताया नहीं, sayonara तो बोला नहीं. ठीक है, तो sayonara. ठीक है, कल मिलेंगे चलते चलते. बाय बाय.